Okay, so let's move on to a new topic, and that is Laplace transform. So you might have studied this particular transform in some other course, but let's apply this transform from signal and system perspective. So first of all, we need to find out what is the difference between Fourier transform and Laplace transform. So Fourier transform and Fourier series that we have already covered, they help us to analyze LTI system. So uh, this transform allow us to describe the system behavior in terms of a new domain, that is omega domain. And this tool also help us to convert back from time domain to omega domain and from omega domain to time domain. And the basic utility of Fourier transform was the reason that in Fourier transform or in Fourier series, we make use of complex exponential signals. And why complex exponential signals are useful signals for LTI system is because of the reason that if input to LTI system is complex exponential signal, then the output is also complex exponential signal. And we call this type of behavior of a function as eigenfunction or eigenvalue. So if you remember from Fourier transform perspective से मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया था कि LTI सिस्टम के लिए हमने किया कि अगर इसका इनपुट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ऑफ द फॉर्म e raised to power j omega t. If such type of input is given to LTI system, what will be the output? Output will be the same complex exponential signal multiplied with some constant factor जिसको हमने represent किया था with exponential. और इस बेस के ऊपर हमने नाम दिया था कि ये जो है LTI सिस्टम का आइगन फंक्शन है और ये जो है LTI सिस्टम का आइगन वैल्यू. और इसको फिर हमने नाम भी दिया था कि सिग्नल सिस्टम पर्सपेक्टिव से आइगन वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं. सो दैट इज द रीजन इन फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम सिग्नल को इस बेसिक सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे ताकि एलटीआई सिस्टम का एनालिसिस आसान हो जाए. बट नाउ वी कैन जनरलाइज दिस आइडिया. Even if the input to LTI system is not ej omega t, even if it is e raised to power st, where s is a complex number, x is a complex number. इस case में भी, if this type of input is given to LTI system, what will be the output? Because this signal is still the eigen function of LTI system, which means output will be the same signal multiplied with some factor, which I'm now going to represent with h of s. From mathematical perspective, this is eigenvalue, but from signal and system perspective, इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे सिस्टम का सिस्टम फंक्शन. सो एच ऑफ एस को हम क्या नाम दे रहे हैं? सिग्नल एंड सिस्टम लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे कि ये सिस्टम फंक्शन. Now, we also know कि जो frequency response है, it is related to the
impulse response of the LTI system. क्या रिलेशनशिप है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, इट इज एक्चुअली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. सो इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि ये जो है ये क्या चीज है, ये आपके पास सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. इस केस में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस को, एस कॉम्प्लेक्स नंबर है. जनरली हम क्या कहते हैं, एस को कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख लेते हैं कि इसका रियल पार्ट लेट्स से सिग्मा है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है ओमेगा. सो अगर एच ऑफ जे ओमेगा का ताल्लुक एच ऑफ टी के साथ, एच ऑफ एस का ताल्लुक भी सिमिलरली एच ऑफ टी के साथ, और क्या रिलेशनशिप होगी? सिस्टम फंक्शन इज बेसिकली एच ऑफ टी e power minus st d of t minus infinity to plus. h of s क्या चीज है? This is what we called as Laplace transform. जिस तरह ये क्या चीज थी? This was Fourier transform. Now this was in relation to LTI system के LTI system का impulse response h of t है तो इसका Laplace transform. अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जनरली एक सिग्नल है तो जनरली for any signal, let's say x of इस x ऑफ t का अगर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? x ऑफ t को हम e पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इससे जो फंक्शन आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल X फंक्शन ऑफ s. So this is the general form of the Laplace transform. Laplace transform. But I'm going to find out the relationship कि Laplace transform और Fourier transform में जो close relationship है वो क्या है. Let me write this statement और इसको फिर मैं prove भी करूंगा. Laplace transform को मैं कहूंगा कि it is the generalization of the continuous time Fourier transform. तो ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ किसके बारे में कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या चीज है? ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की जनरलाइजेशन. अभी कैसे है? लेट्स फाइंड इट आउट. तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखी है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको अगर मैं एवेल्युएट करूं मैं कहूं कि s जो है वो सिंपली j ओमेगा के बराबर है. सो इफ यू नीड टू रिमेंबर कि s को जो मैंने डिफाइन किया है वो ये है. s के बारे में मैंने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि s क्या है? जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट सिग्मा है और इमेजिनरी पार्ट ओमेगा है. नाउ आई एम सेइंग कि अगर s प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी like this,
what will happen to this expression? Let's find it out. So मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा, अब हो जाएगा j ओमेगा x of t e power minus j omega t d of t. So you can see that अब ये क्या चीज बन गई है, अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया, अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म. So now I can make one important ऑब्जर्वेशन. वो क्या हमारी हो गई है कि अगर हमारे पास किसी भी सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो और उस लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एवेलुएट करें, एस को सिंपली j ओमेगा के बराबर ले लें, that will mean that will be equal to the Fourier transform of that signal. So this is one relationship जो हम identify कर सकते हैं कि Fourier transform is a special case of Laplace transform when you consider S to be purely imaginary. But there is more general relationship. वो क्या हो सकती है? ये तो वो रिलेशनशिप है जब आपने अज्यूम किया है कि अगर S प्योरली इमेजिनरी हो, ठीक. इस केस में ये रिलेशनशिप बन गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म बिकम्स इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप S को सिंपली j ओमेगा ले लेते हैं. इट मींस कि आपने रियल पार्ट को जीरो ले लिया. व्हाट इफ S is complex, it has real part as well as imaginary part. फिर क्या रिलेशनशिप है लेप्लास ट्रांसफॉर्म में और फोरियर ट्रांसफॉर्म? सो लेट्स चेक इट आउट. सो नाउ ये जो जनरल एक्सप्रेशन है इसमें पहले मैंने ये पुट किया. अब मैं कहूंगा कि S जो है j ओमेगा के बराबर नहीं है बल्कि S जो है अल्फा प्लस j ओमेगा के बराबर. सो नाउ Laplace transform when S is equal to sigma plus. So हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को मैं यूज कर रहा हूँ. सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, यू हैव x sigma plus j omega integration from minus infinity to plus infinity x of t है, and then इस s को मैं रिप्लेस करूंगा by its given value. So we have minus alpha plus j omega into t d of t. Okay. I can represent the right hand side integral like this: x of t e power minus sigma t and then e power minus j omega t d of t. Now let me put this in brackets. Now if I ask you to कमेंट कि जो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन है, आप क्या कहेंगे कि एक्सप्रेशन के बारे में कि क्या चीज होगी? It's a Fourier transform the x sub t into e की power जो फंक्शन है. यस, राइट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि इट इज एक्चुअली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल. एज इफ ये राइट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है हम कह सकते हैं कि ये क्या चीज है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ले रहे हैं एक्स ऑफ टी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ई पावर माइनस सिग्मा टी, ये जो सिग्नल है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. इट मींस कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो जिसको मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म कह रहा हूं, इसको मैं कह सकता हूं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट जो
मैं देना चाह रहा हूँ. So what is the statement that I can make? I will say Laplace transform is the Fourier transform of x of t e power minus sigma. तो अब हमने ये जो रूल किया, ये आप कह सकते हैं कि इट्स मोर जनरल रिलेशनशिप. एक तो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है दिस वन. जब हमने एज्यूम किया कि एस प्योरली इमेजिनरी है, तो फिर तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर हो जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. ये जो मैंने, और अब ये सेकंड रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जनरल अगर हम रिलेशनशिप देखें कि जब एस जो है वो प्योरली इमेजिनरी ना हो बल्कि कॉम्प्लेक्स हो, फिर क्या रिलेशनशिप है? फिर हमारे पास ये रिलेशनशिप. सो इन इट मींस इसको अगर हम और भी इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये कहेंगे कि अगर एक सिग्नल हो एक्स ऑफ टी, इस सिग्नल को आप एक रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर, रियल एक्सपोनेंशियल, और फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर. ये जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है, ये एक्चुअली क्या चीज है? ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म. नाउ ये जो आप इसको जिस रियल एक्सपोनेंशियल के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई पावर माइनस सिग्मा, ये आपके पास डिकेइंग एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है और ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो सिग्मा है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. एज ए रिजल्ट, जिस तरह हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात की थी, कि कन्वर्जेंस की बात की थी, कि हर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. देयर हैज टू बी सम कंडीशन दैट सिग्नल विल मीट, फिर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं या उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा. अब ये स्टेटमेंट हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में भी दे सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गिवन सिग्नल मे और मे नॉट एग्जिस्ट. अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, कब कन्वर्ज होगा, कब नहीं होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट टू मेक अ शॉर्ट कमेंट ओवर हियर, ये जो मैंने रिलेशनशिप डेवलप की है फोरियर ट्रांसफॉर्म को, मैंने कहा है कि एक्चुअली लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या चीज है? गिवन सिग्नल को एक रियल एक्सपोनेंशियल के साथ आप मल्टीप्लाई करें और उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म. अब ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर रहे हैं इस सिग्नल का, ये कन्वर्ज हो भी सकता है, नहीं हो सकता. वो अगेन जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हो, अगर ये ई पावर माइनस सिग्मा टी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, इसका मतलब है कि ये ओवरऑल सिग्नल क्या होगा, इसका, इसको आप कह सकते हैं कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा या ये फाइनाइट एनर्जी सिग्नल बन जाएगा. एज अ रिजल्ट उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर ई पावर माइनस सिग्मा टी जो है वो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, तो फिर ये ओवरऑल सिग्नल किस किस्म का बन जाएगा? ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल बन जाएगा, which means it will have infinite energy. एंड वी ऑलरेडी नो कि अगर एक सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट होगी, इसका मतलब है कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ टू बेटर अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर ऑफ और रिलेशनशिप ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म विद फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. उसके बेस के ऊपर हमें पता चल जाएगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ रिलेशनशिप क्या है, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म कब कन्वर्ज करेगा, कब नहीं करेगा.
तो फर्स्ट एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं e पावर माइनस a of t u of t। एंड वी नो कि इस सिग्नल का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट तभी करेगा जब a जो है ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो विद दिस इंफॉर्मेशन अब अगर मैं इसका पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेता हूं और फिर इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करके रिलेशनशिप। सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड करेंगे वो आपके पास ये होगा। सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि 1 डिवाइडेड बाय j omega plus a where a is greater। तो ये हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। अब इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, which is represented by this notation। और हमारे पास जनरल रिलेशनशिप क्या है, x of t e power minus st df। So again let's put the equation, सिग्नल हमारे पास ये है। So again the limits will change because of the unit step function। Now इसमें we know कि ये s जो है it's equal to sigma plus j। Let's substitute the value of s in this equation, okay? So we end up with this thing, e power minus plus a। इसको मैं अलग से कर लेता हूँ और ये आपके पास why I've written this equation in like this because of the reason जब हम इसका Laplace Fourier transform Fourier transform find कर रहे थे तो हमने यहाँ पे किया था कि इस तरह के फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपके पास ये आ गया, और इसके लिए ये जो रिजल्ट आएगा ये इसी वक्त ही आएगा जब आपके पास a ग्रेटर देन 0। ठीक है, a ग्रेटर देन 0। नाउ इफ यू कंपेयर दिस रिजल्ट, इसको आप कह सकते हैं कि एज इफ आप इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि दिस इज द टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है इस फंक्शन के साथ। सो द राइट हैंड साइड इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज कब होगा वो अगर आप देखें, इसके लिए जरूरी है कि ये जो है इसको क्या होना चाहिए ताकि ये कन्वर्ज हो। जी, एनी आइडिया? gamma plus a greater than 0। Yes, so for convergence sigma plus a क्या होना चाहिए? greater than 0। Yes, greater than 0। Yes, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी देन आई कैन से कि ये जो
इंटीग्रल है, इससे क्या रिजल्ट आएगा? इस रिजल्ट को मैं लिखूंगा 1/+ जी। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये जो रिजल्ट है ये कब वैलिड है? अगर तो सिग्मा प्लस ए ग्रेटर देन 0। नाउ वी नो, इसको अगर हम ओरिजिनल उसमें कन्वर्ट कर दें, वी नो कि जो मैंने लिखा हुआ है एल्फा सिग्मा प्लस जे ओमेगा ये एस के बराबर है। और सिमिलरली यहाँ पे इसको और इसको कंबाइन करके हम इसको एस कह सकते हैं। ये हो गया। एंड ये जो रिजल्ट है इसको मैं इस तरह लिख लूंगा कि सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस है, ये लिख सकता हूँ। एंड देन व्हाट इज सिग्मा एक्चुअली? सिग्मा क्या चीज है बेसिकली? विद रिस्पेक्ट टू एस, व्हाट इज सिग्मा? It's the real part of this. यस, तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली सिग्मा जो है ये रियल पार्ट ऑफ एस है। तो इस कंडीशन को मैं लिखूंगा कि रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस। सो नाउ दिस इज the Laplace transform of this signal. Okay. और ये जो हमने फाइंड किया है ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये आपके पास उसी सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। नाउ व्हाट इज द conclusion about this whole example? वो हम क्या करें? वी कैन से कि जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था ये उसी वक्त ही कन्वर्ज होगा जब ये वाली कंडीशन मीट हो। तो इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ओनली अंडर दिस कंडीशन कि जब a ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया? अगर a इक्वल टू 0 हो या a लेस देन 0 हो तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया? व्हाट अबाउट लेप्लास ट्रांसफॉर्म? इस सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी सिर्फ और सिर्फ कौन से केस के लिए एग्जिस्ट करेगा? जब रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर इस सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो जस्ट लाइक the comment that we made about Fourier transform, that Fourier transform may or may not converge, we can also make a similar comment about Laplace transform. Laplace transform of a given signal may or may not converge. Okay. ये हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे इस एग्जाम्पल के बारे में वो क्या है? ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की कंडीशन है इसको अगर आप देखें, अगर तो हमारे पास ये हो कि इफ a is positive, ये जो हमने इस उसमें इक्वेशन में मैं कह रहा हूं कि ये जो a है अगर तो पॉजिटिव, और अब अगर मैं इस कंडीशन के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म को एवेल्युएट करूं कि सिग्मा 0, ठीक है, अगर मैं एक्स ऑफ एस को एवेल्युएट करूं कि सिग्मा 0 के बराबर,
विच मीन्स सिग्मा इक्वल टू 0 का यही मतलब है, इफ यू रिमेंबर कि एस जो है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बराबर। सो अगर मैं इसको 0 ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि एस जो है वो जे ओमेगा के बराबर है। एज अ रिजल्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे जे ओमेगा। ओके, एस जो है वो सिग्मा 0 हो गया और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जे ओमेगा प्लस। सो ये जो कंडीशन है इसको आप कहते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 में मैंने अज्यूम किया है कि ए जो है एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस केस में जो सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कन्वर्ज हो जाएगा टू फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम ये कंडीशन पुट करेंगे। जब हम सिग्मा को 0 ले लेते हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म से हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक हो गया। कंडीशन नंबर 2 को मैं देखता हूँ। कंडीशन 2 में कंसीडर करता हूँ, अगर आपके पास ए जो है नेगेटिव, व्हाट विल हैपन। इस केस को मैं एक और भी क्लियर कर लेता हूँ कि कंडीशन 1 में अगर ए पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स इट डजंट मैटर कि रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए। चाहे ए पॉजिटिव भी है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। सो लेट मी ऐड दिस, इफ ए इज पॉजिटिव लेप्लास ट्रांसफॉर्म exists as well as Fourier transform also exists। ठीक हो गया। कंडीशन नंबर 2, अगर ए नेगेटिव हो देन व्हाट विल हैपन। इवन लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर दोनों के 0 भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि इट इज सम नंबर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का ये ना मतलब, और नेगेटिव का मतलब ये है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों को ले। इस केस में क्या होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे कुछ फर्क पड़ेगा। यस सर, लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, व्हाई। सर क्योंकि वो इंक्रीजिंग सिग्नल है, डीके सिग्नल नहीं है सर। नो, यू ऑफ टी सही से। ठीक है। हमारे लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है, रियल पार्ट ऑफ एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए, ये कंडीशन। तो मैंने जिस तरह कहा कि इस केस में चाहे ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, होना क्या चाहिए कि रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए। इस केस में लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इट डजंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म हैज नथिंग टू डू कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है या ए 0 है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। बट व्हाट अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए क्या। फोरियर ट्रांसफॉर्म का बताना। यस, ओके ओके फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके ओके, ठीक है, आपने उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट बट, सॉरी, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट बट फोरियर ट्रांसफॉर्म doesn't exist। That is the important conclusion that we can draw from this example। So you have इस एग्जांपल से हमें ये पता चल गया कि समटाइम्स किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज इट डजंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन उस सिग्नल का फिर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। So that is another advantage of Laplace transform। So some students might be thinking कि ये Laplace transform का क्या फायदा हमें। So this is one example जो आपको बता रही है कि why we will need Laplace transform। Sometimes it will not be possible for us कि हम signal का Fourier transform find कर सकें। As a result, we will not be able to perform some analysis।
बट उस सिग्नल का हम या उस सिस्टम का फिर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर बता रही है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। Let's look at another important aspect of Laplace transform by solving example number 2. Signal that is given to us is x of t minus e power minus at u of minus t. इस सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करना। ओके, सो लेट्स use the standard equation. तो इस इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो माइनस e पावर माइनस टी u of minus t e power minus st dt. Now because of this function limits, ये माइनस हमारे पास है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो लिमिट्स हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएंगे and we will have this function e power minus at e power minus st, और इसको फिर मैं इस तरह लिख लूंगा e power minus s plus a t d of t। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रल है, इसको मैं लिखूंगा, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1 over s plus a। बट द क्वेश्चन इज कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट वी विल टॉक अबाउट। कि ये जो रिजल्ट आया या जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो ये कन्वर्ज हुआ है उसकी कंडीशन क्या है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? ये इस इंटीग्रल से ये रिजल्ट जो आ रहा है अंडर विच कंडीशन? जिस तरह रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस s, जिस तरह ये हमने किया था ना, इसके लिए क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस ए। ओके, लेट मी, इसको मैं लिख रहा हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन कि ये सही है या गलत।